زہیب ذرا تھوڑے سے فراڈ کی بات کریں. فراڈ کی بات کریں, بالکل. میں ان کی فراڈ کی بات نہیں کر رہی, میں کسی اور فراڈ کی بات کر رہی ہوں جو کہ آج کل فیملیز کرتی ہیں. جی ہاں, فیملیز جس میں ماں باپ بہن بھائی, کبھی کبھی خاندان والے بھی کس طرح سے فراڈ کرتے ہیں ایک اور فیملی کے ساتھ, جس میں کسی بچی یا بچے کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. کس طرح شادی کے ٹائم نوئنگ کہ آپ کی اولاد میں, اور پتہ ہوتا ہے پیرنٹس, پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ذہنی مرض سے گزر رہے ہیں, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, ایکسٹریم بیہیویئر کے ان کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, جس میں وہ اگریسو بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے, وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے, ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے, کام نہ کرتا ہو, کہ کہیں ٹک نہ سکتا ہو, یہ سب پتہ ہوتا ہے. ایون بری نشے کی عادت ہے, نشے کی ایڈکشن, اس کا ہر مسئلے کا حل ایک سمجھتے ہیں. اچھا, ایڈکشن ایک تو سبسٹنس کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ریلیشن شپ کی, کہ آپ کا بچہ ایک ریلیشن شپ میں رہ ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کر رہی ہوں؟ نوئنگ آل دیٹ, آپ کیونکہ باہر کی پکچر بڑی خوبصورت ہے, رشتہ لینے جاتے ہیں اور وہاں نہیں بتاتے بچی کو, اس کی فیملی کو, کہ جی آپ کے بیٹے میں مسئلہ ہے یا آپ کی بیٹی میں مسئلہ ہے, وائس ورسا دونوں ہو سکتے ہیں, نہیں بتاتے, شادی ہو جاتی ہے, اور پھر واٹ اے ٹارچر. بڑی تکلیف کی بات ہے, ڈیورسز ہوتی ہیں, سپریشن ہوتی ہے, یا ایک بڑی ابیوسو میرج, اور اس میں جو اگر بچے پیدا ہو جائیں تو ایک تو یہ کہ جینیٹکلی بھی ان میں وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے وہ مسئلہ, اور ساتھ میں یہ کہ بچہ افیکٹ بڑا ہوتا ہے یار, بچہ افیکٹ ہوتا ہے, ان کا اپنا تعلق افیکٹ ہوتا ہے, وہ تو ایک ہیل ہے, وہ تعلق, ہر گزرتا لمحہ وہ دوزخ ہے. بالکل, یہ ریہیب نہیں ہے, شادی سلوشن نہیں ہے. اور خیر میں تو اپنا, ہم لوگ جذباتیوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ بہت خبروں میں سنتے رہتے ہیں. ڈاکٹر وجاہت ہمیں بہتر بتا سکیں گے کیونکہ ان کے پاس تو پیشنٹس ایسے آتے ہوں گے, سائیکائٹرسٹ ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک, گڈ ٹو سی یو. مطلب 5-6 دن پہلے یہ لڑکا آیا تھا ہمارے پاس, اور یہ لڑکا اور فٹ ہو کے آ گیا. یار یہ کر کیا رہے ہو بھائی؟ سالوں سے ماشاءاللہ فٹ ہے. نہیں اور فٹ ہو گیا. کیا مقابلہ چل رہا ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ زہیب کو میں تو کرتا ہی نہیں کچھ بھی. میں نے تم کو دیکھا اور اس کے بعد مجھے ہوئی موٹیویشن. مجھے اس سے پہلے لگتا میں اچھا ہوں, لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو میں نے کہا مجھ سے اچھے بھی ہیں. ٹھیک ہے, واٹ این انسپریشن. اچھا یہ بعد میں باتیں کریں گے لیگ سے لیگ کی, مجھے یہ بتائیں کام پہ آئیں. تو وجاہت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ جس میں لڑکے یا لڑکیاں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ذہنی مراض اور کنڈیشن ایسی ہے کہ شادی تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی فیملیز چھپا کے ان کی شادیاں کر دیتی ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کا, اور گزشتہ 5-6 سالوں کے اندر جو مینٹل النس میں دیکھ رہا ہوں, وکٹمز میرے پیشنٹس بن رہے ہیں, نہ کہ وہ کلپرٹ بن رہا ہے جو کہ وہ ساری آگ لگا رہا ہے اس دنیا میں. بیچارے جن لوگوں کے ساتھ غلط شادیاں ہوتی ہیں, یا بیگمات ہوں یا ہسبینڈ ہو, وہ بیچارے ہمارے پاس آتے ہیں سوسائڈل ہو کے, ڈپریسڈ ہو کے, اور ذرا ان کو ڈیٹیل میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی شادی غلط جگہ ہوئی. یا تو جس طرح زہیب آپ نے کہا, نشے کے امراض چھپائے جاتے ہیں, نہیں بتاتے, اوپر سے لیپا پوتی کر کے دولہے کو بٹھا دیا جاتا ہے, اور اگلے 3 دن میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا بربادی ہے. یا تو بائیپولر ڈس آرڈر ہے, یا اسکیزوفرینیا ہے. ایسی بیماری ہے نادیہ کہ لوگوں کے ساتھ اگر پتہ چل جائے کہ کوئی بیماری ہے تو ان کی کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی شادی نہ کرے, اس لیے چھپاتے ہیں. نہیں, یہ سوچ کیا ہے کہ شادی کرا دو ٹھیک ہو جائے گا, یہ اماں کی خاص سوچ ہوتی ہے. تو پھر وہ ابا کو کنونس کرتی ہیں اور آن بورڈ سب آ کے پھر رشتہ لے کے جاتے ہیں, چھپاتے ہیں. یا تو بتا دیں کہ جی ہمارے بچے کو مسئلہ ہے, بچی کو یہ ہے. دیکھو, ایک ایسا نفسیاتی بچہ یا ڈسٹرب بچہ ایسے ہی ڈسٹرب ماں باپ کا ہی ایک آؤٹ کم ہو سکتا ہے نا, تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ماں باپ کے اندر بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بچے میں نمودار ہو رہی ہوتی ہیں, اور یہ سلسلہ شادی پہ نہیں آتا اچانک کہ جھوٹ بول کے میں یہ کروا دوں گا. یہ شروع سے چل رہا ہوتا ہے, اسکول میں کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا, اس کے بعد علاقہ بدل دو تو ٹھیک ہو جائے گا, یہ گاڑی دلا دو تو ٹھیک ہو جائے گا, گھر میں اے سی لگا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایسا ایک ڈوجی تھاٹ ہے فیملی کا جو اس بچے کو بڑا کرتی ہے, وہ پروان چڑھاتی ہے, اور جب وہ بچہ بلوغت کی عمر میں آتا ہے تو پھر رہ جاتی ہے شادی. تو وہی کنٹینیوٹی ہے جو شادی کرا دو ٹھیک ہو جائے گا. کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ مجھے بتائیں, شادی کرا کے ایسا کیا ہونا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ کیا ہے بیک آف دا مائنڈ؟ یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے یا ریہیب ہے, یہ تجربہ ہے, یہ صرف اس کے لیے تجربہ گاہ ہے کہ عورت آئے گی, ذمہ داری ہوگی, ذمہ داری کے بعد پیسے کمائے گا, تھوڑا سا فزیکل انٹیمیسی ہوگی, تو پتہ نہیں کون سا بلوٹوتھ کنیکٹ ہو جانا ہے ان کا, کہ اس کے بعد سارے اس کے اوسان جو ہیں وہ سیٹ ہو جائیں گے. یہ ڈینائل ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اور مریض بن جاتا ہے. اسٹڈیز نے کیا کہا کہ واقعی اگر یہ انٹیمیسی اور ذمہ داری اور یہ سارا, اس سے کیا ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ مسئلے؟ ہو جاتے ہیں. اگر ڈائگنوزڈ النس نہ ہو, وقتی مسائل ہو, اسٹریس ہو, انزائٹی ہو,
हल्का फुल्का सैडनेस हो, नॉट अ डिप्रेशन, सैडनेस phase. है ना, इट्स अ फेज ड्यू टू एनी अपकमिंग इशू। और उसके अलावा गुर्बत या गैर जिम्मेदारियां, इस पे तो मैं कहता हूँ कि ठीक हो जाते हैं अगर आप थोड़ी बहुत काउंसलिंग करें, थोड़ा बहुत उसको जिम्मेदारी दें, तो ये तो एक कंडीशन है, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन DSM-5 और ऑक्सफोर्ड की जो हमारी किताबें हैं उसमें लिखा है जो बीमारियां हैं उसके अंदर आप ये चीज़ ना करें। इट्स अ अल्टीमेट सोल्यूशन आफ्टर ट्रीटमेंट, कि पहले आप ट्रीटमेंट कराएं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करें, उसके बाद आप थर्ड स्टेज पे देखें, वो भी डॉक्टर बताता है कि आया कि ये बंदा गाड़ी चला सकता है या नहीं, औरत के साथ रह सकता है या नहीं, मर्द के साथ रह सकती है या नहीं, और या तो फिर वो किसी जॉब पे जा सकता है या नहीं। ये एक थर्ड स्टेज है, इधर पहला स्टेज कर देते, इधर क्या होता है नहीं। और वो देखें आयत, वो जो आपने फिजिकल की बात की है, तो जब इंसान मेंटली अपसेट है, जहनी तौर पे अपसेट है, तो ये भी बड़े केसेस आते हैं कि वो फिजिकल ताल्लुक भी खत्म हो जाता है। और देखिए ना, या फिर अब मैं एबनॉर्मल मर्द की बात कर रहा हूँ, अगर मर्द साइकोलॉजिकल इलनेस का शिकार है तो चले शुरू में शादी हुई, फिजिकल इंटीमेसी भी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो ताल्लुक भी टूट रहा है। या मैंने बताया ना, या एबनॉर्मल आपको पता है ये फिजिकल इंटीमेसी बड़ा सॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पे बेसिकली मैरिटल रेप है, आपको पता है, दैट इज मैरिटल रेप, कि एक बंदा नशे में आके धुत होके अपनी बीवी के साथ इंटीमेसी या उससे बात करे, या एक नफ्सियाती आदमी जिसको हेलुसिनेशंस हो, डिल्यूजन्स हो, वो उसको परसीव ही कुछ और कर रहा हो, ठीक है, और उसके ऊपर जुल्म करे, तो ये मैरिटल रेप है। यहाँ पे तो सब्र करो वाला एलिमेंट है ना। हाँ, यहाँ तो यही है। और आप अगर किसी को शौहर ही तो है, देखिए ये होता है, और शौहर ही तो है तुम्हारा। कसम खुदा एक तो आप बता नहीं पाते, बच्चियां अजीब क्या बात। बताएं, और बताएंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा कि भाई वो तुम्हारा शौहर है, हम क्या कर सकते हैं। ये तो उसके हुकूक है। अच्छा, ये तो हमारे अपने खानदानों में हैं। ना एक माई हमेशा बैठी हुई होती है जिसको सब पता होता है, जी और वो बड़ा बेहतरीन तरीके रिसर्च बेस है, बेटा अभी कुछ अरसे की बात है, ठीक हो जाएगा, अभी एक सब्र बच्चा करो। होगा ना, ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर वो आती है बच्चे पे, एक बच्चा होगा, पुत्र अभी फिक्र ना कर, अभी ठीक हो जाएगा, सब्र कर। वो सब्र करते करते उसकी बाउंड्रीज की ऐसी की तैसी कर देता है, और फिर वो सब्र क्या होता है, दिन रात थप्पड़ खाना, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, शक। अभी मेरे पास एक पेशेंट था जो अबू धाबी से फैमिली आई थी, कोकेन एडिक्ट लड़का था वो, यकीन करो उसने अपने कमरे में 6 कैमरे लगाए हुए कि मुझे शक है कि कमरे में कोई आता है। ओहो, और इतनी पढ़ी लिखी शानदार औरत वो मेरे पास आई, तो पता चला कि वो बंदा जो है वो कोकेन एडिक्ट है, जिसकी वजह से उसको पैरानोया होता है और डिल्यूजन्स होते हैं। पैरानोया बहुत खतरनाक। और ऐसा पैरानोया, अल्लाह माफी, मैं बताऊं कि उसने छत की जो सीलिंग होती है तोड़ के झांकता था कि अंदर कोई बैठा है। कैन यू बिलीव? ओहो, और अब क्या ये देखें, ऐसी अजियत अजियत होगी वाकई। उस लड़की के लिए, और अगर उनके बच्चे तो नहीं। उनके 2 बच्चे हैं, अभी रिकवरी में है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। लेकिन बच्चे कहाँ यार, ये बच्चे कहाँ बच्चों के साथ जाएंगे? कितना बड़ा फुल टाइम जॉब, माँ को भी बच्चों के साथ उनकी तरबियत करनी देखो, है, हम कौन कहते हैं करेगा कि तरबियत बच्चे जब ना ऐसा एक खराब हॉरर सीन ना देख लें, कुछ गलत ना देख लें, हम कहते हैं हटा दो भाई, इनकी नजरों में भी इनसे ना गुजरे। सही बात और है। फिर जब घर में बाप या माँ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, दे आर स्कार्ड फॉर लाइफ। आप वही जनरेशन को अगले तरीके कर रहे हैं, वो फिर अपने आने वाले लोगों के साथ करेंगे, वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं, उनके सबकॉन्शियस लेवल पे आदमी की जो डेफिनेशन है वो यही है। अभी कुछ अर्से पहले एक हमारी मारूफ सेलिब्रिटी का एक यही हुआ ना कि अब हमें नहीं पता पीछे क्या हुआ, लेकिन शादी जो हुई गई है वो इसलिए हुई कि शादी करके ये बंदा सुधर जाए, और वो शायद कोई दिमागी अमराज का शिकार है तो वो बेहतर हो जाए, लेकिन शादी इज नॉट रिहैब। ये थोड़ी कि वो बंदा, नतीजा क्या हुआ, 3-4 महीने में हमारी अपनी फैमिली की लड़की जनाब तबाल आ गई। क्यों, लड़के में क्या मसला? लड़कों में मसला या तो वो और डिल्यूजनल खास है, तौर पे जिसकी एग्जांपल आप दे रहे हैं, क्या मसला क्या? या तो ग्रीडी हैं, लोग पैसों के बहुत लालची हैं, जो टीवी पे नजर आते हैं हमें लगता है कि ये लोग बड़ा पैसा, शानदार लाइफ, लेविश है, और ऐसे लोगों से लोग फिर लालच भी करते हैं, या तो उनसे फेम की भूख मांगते हैं या वो पैसा मांगते हैं। और फिर जब रियलिटी चेक होता है कि यार नहीं यार, पैसा इतना तो नहीं है इनके पास। भाई देखो ना, मेकअप में हम अलग सरापा है ना हमारा, घर में तो हर आदमी नॉर्मल है, जब वो उसको घर में देखते हैं काम करते हुए तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको वही सेलिब्रिटी चाहिए एवरी टाइम, वही पैसा, वही लेविश, वही पॉपुलैरिटी। भाई वो औरत घर पे एक बीवी भी तो है, तुम उस बीवी वाला कैरेक्टर तो देखो उसका, दे डोंट वांट टू सी, वो उन्हें चाहिए बस हम इसको जो शादी करके लेकर आ रहे हैं या हम जा रहे हैं, हमें वो सारी बारात फौरन ही मिल जाए। अच्छा, और ये अब बड़ा बहुत सी जरूरी खातून है। को तो मेकअप उतार के पहचानना मुश्किल है। आजकल मर्दों का भी कुछ ऐसे ही हाल है। हाँ, वेरी गुड, गुड वन, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब डॉक्टर वजाहत देखिए, बात वो ये कि क्या देखा जाए, आप देखते हैं कि जी माँ बाप अच्छे हैं, लड़का कमा रहा है, खाते पीते हैं, शरीफ लोग वैसे पेरेंट्स वाइज, लेकिन किस तरह पता चले बच्चों का रिश्ता करते हुए कि जिससे आप शादी कराना चाह रहे हैं वो लड़का या लड़की, और ये तो अपने फैमिली में भी हो तो नहीं कभी कभी पता चलता कि जहनी उनको मसला है, कैसे पता चले ये लड़का जो है इसको इश्यूज हैं,
मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, ये लड़की को इश्यूज हैं, तो आप शादी ना कराएं, वो छुपा रहे हैं, कैसे पता चले? जो फैमिली बहुत जल्दबाजी करे वो तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अमूमन लोग जो बाहर से आते हैं उनको पता नहीं क्या जल्दी पड़ी हुई होती है कि हमारा बच्चा 10 दिन के लिए आया, निकाह करके चला जाएगा, ये हमेशा रेड फ्लैग है। 6 महीने का टाइम लो, इंसान की जो फितरत है ना 6 महीने में सब नजर आ मुझे तो जाता है। लगता है 2 साल, 2 साल में तो चलो अल्टीमेट है ही है, हाँ, लेकिन 2 साल इंतजार कैसे कोई करेगा शादी के लिए? क्यों नहीं करना भाई? 6 महीने में नहीं पता चलता। दूसरा, माओ को देख लें, माओ में बहुत चीजें होती हैं, आपको पता है बिगड़े हुए जो लड़के होते हैं उनका ज्यादा इनेबलिंग माएँ कर रही होती है, सॉरी टू से, वो जब उनकी बहनों के साथ भी ज्यादती वही करती है कि भाई आएगा उसको ये सालन दो, ये बोटियां निकालो, समथिंग लाइक दैट। तो माओ को देखें। दूसरा ये कि अब तो मुझे ये लगता है एनालिसिस कराना जरूरी है। बिल्कुल, और आपको कभी लगेगा कि बच्चा इतना काबिल है, क्या पढ़ा लिखा, क्या सेटल्ड, उसका भी मसला हो सकता है, क्योंकि सब बात ये है ना कि वो तो जब फैमिली के साथ होगा डिफरेंट होगा। कुछ लोग ऑफिसेज वगैरह में परफेक्ट होते हैं, घर आके बेगम के साथ। अभी हमारी फ्रेंड हैं, वो इसी तरह अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बड़ी इम्प्रेस लड़के से, और 1 साल बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी इम्प्रेस कि उनको लगे कि अपनी बच्ची शायद गलत बात कर रही है, लड़का सही है, और साल बाद लड़का लड़की से कहता है कि भाई वो मैं तुम्हारे उधर वहाँ शहर में आ रहा हूँ, हॉस्टल में है, मैं तुम्हारे साथ 2 दिन रहूँगा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना ये सारा। उसने कहा जी मुझे मसला है। उसने कहा क्यों मसला है भाई? मसला कैसे हो सकता है? हमारी मंगनी हुई है, मैं आके 2 दिन रहना चाहता हूँ, क्या मसला है? आज के ड्रामों में भी ऐसे दिखा रहे हैं, दर निजात में भी है ना फैमिली को लड़के की ये बुरा लगा, लेकिन वो लड़की जो घबराई है, और शुक्र है उसने अपनी फैमिली को बताया कि मुझे ये कह रहा है, और वो लड़की की फैमिली जाग गई कि यार ये तो लड़का इतना बना फिर रहा था, वो तो सब ड्रामा था कि मैं इतना शरीफ और इतना ये, और बड़ा कहते हैं जी हम बड़े मजहबी भी हैं, हम बड़े केयरफुल हैं, हम वो ये हैं, हमारे ये एथिक्स, नॉर्म्स, मॉरल्स, और फिर साल बाद, साल लगा है, साल 1.5 साल, उसमें बच्चे की जो है ना असलियत सामने आई, और उसकी फैमिली की। सो टेक टाइम, टेक एटलीस्ट 2 years, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि बाद में रोना है सारी जिंदगी का। लपेटने की कोशिश ना करें। हमारी फैमिलीज ना हमारी बच्चियों को बहुत जल्दी शादी के ऊपर एक ऐसा मिशन बना लेती है कि नहीं हुई तो हम नाकाम हो जाएंगे, जिससे लड़की भी जल्दी करती है और फैमिली भी। टेक योर टाइम। बेटियों के हवाले से बहुत ख्याल करना पड़ता है। लड़के जितने पढ़े लिखे हैं उतने ही डॉजी होते जा रहे हैं, आपको पता है, उतने ही अपने ऊपर लेयर्स बना के बैठे हुए होते हैं। ये जो नार्सिसिस्टिक लोग हैं, ये आधे से ज्यादा तो कामयाब ही है ना, ये बात। पढ़े लिखे लोग हैं, कामयाब, और इतने चार्मिंग होते हैं कि अगर तुम लुक्स का फायदा उठाते हैं भाई, धोखा देते हैं, तो लोग सासें तो उनकी गर्विदा हो जाती है शुरू में। बीवी कहती है नहीं अम्मा ये ऐसा नहीं है, पहला हमला अपनी सास पे होता है, पहला हमला उसकी लड़की की माँ पे होता है। जहां जहां उनके इमोशंस कनेक्ट नहीं होते वहां वो मिस्टर हीरो चार्मिंग होते हैं, और जहां इनके इमोशंस कनेक्ट हो रहे होते हैं वहां वो अब्यूज करते हैं। अब ये तपिश ड्रामे में मुनीब का जो ड्रामा है, इतना टॉक्सिक आदमी, इतना उसके अंदर अजीब सिकनेस है, लेकिन सब उसके फैन हैं। लड़की बोल रही है ठीक नहीं है, लेकिन कोई नहीं मान रहा, क्योंकि वो तो सब पे खर्चा कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें ज्यादा जो पब्लिक फिगर है ना, वो क्लास, ठीक है, वो पिसती है ना। सही बात। लड़कियां हो, जैसे अब एक्ट्रेसेस हैं हमारी, मॉडल्स हैं, उनके ऊपर वैसी एक स्टिग्मा का शिकार होती है वो कि ये तो किसी को, इनके अंदर तो टॉलरेंस ही नहीं है, तो शादी अपनी चला ही नहीं सकती। ये होता है ना अक्सर। बिल्कुल। अब वो अगर ऐसे रिलेशनशिप में आ गई टॉक्सिक, वो क्या करें? बहुत आते हैं, वो तो बीच में फंस गई ना। जब से हम बड़े हुए हैं हम यही देख रहे हैं कि हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ, लोगों ने यही जज किया है ये गलत थी, लो जी ये हो लो जी मुझे तो पहले पता फिर था, हो गई, फिर हो गया ये। देखो, हमेशा अपनी टीम बनाओ, हम आपके साथ होते हैं, लोग अच्छे लोग इस दुनिया में हैं, और शर्मिंदा ना हो। ये जो लोग सप्रेस करते हैं ना, जो कोई हादसा हुआ और वो नहा धो के सप्रेस करके परफ्यूम लगा के बैठ गए और कोशिश की कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, ओके, दैट इज अ डेंजरस थिंग। ये उनको साइकोटिक कर देती है, डिप्रेस कर देती है, सुसाइडल कर देती है। अगर कुछ हुआ है, आप मैं ये नहीं कहता आप ऐलान करें, लेकिन अपने लोगों में आप खुल के बताएं, दैट इज नॉट योर फॉल्ट अल्टीमेटली। जिसका फॉल्ट है वो, हम लोग क्या करते हैं, शेम के चक्कर में दूसरे की गलती पे शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं। अगर विक्टिम शेमिंग से डरते हैं ना, विक्टिम शेमिंग से डर रहे होते हैं, और यार हमारी सोसाइटी और नादिया खान जैसी जो एक आवाज है खुल के बात करती है कि भाई तुम्हें क्यों शर्मिंदा हो रहा है, मतलब तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। अभी कुछ अरसे पहले ही हमारी सेलिब्रिटी के साथ ये हुआ, तो उन्होंने बड़े टाइम के साथ पोस्ट करना शुरू किया, और उसके बाद उनके अंदर से सुकून आया, और एक्चुअली देखिए लोगों ने सपोर्ट किया, जी। और यही आपका काम है। देखें सबके बच्चे बच्चियां हैं, नहीं पता आगे क्या होना है, सोचते तो सब अच्छा है, लेकिन आगे कब क्या हो जाए। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे ना, अभी यकीन करें ये मकाफाते अमल है, ये आपके पास वापस आपके लिए जो है ना सुकून बनेगा। और अगर आप किसी को आप शेम करेंगे,
انگلیاں اٹھائیں گے, وہ آپ پہ آئے گی بات. نہیں, اب مجھے ایک بات ہے, اس سے بچنے کی اب ہم بات کریں نا کہ کیسے وہ ریڈ فلیگز کی ہم بات کریں, تو یہ جو ملاقات ہے لڑکا اور لڑکی کی, لڑکی کو ضرور کرنا چاہیے, کس حد تک کرنی چاہیے, لمٹس کیا ہونی چاہیے, جیسے انہوں نے کہا کہ 2 دن اور اس کے بعد میں تمہارے ساتھ رہوں گا, یہ رابطے تو بڑے ضروری ہیں. رابطے کتنے حد تک ہونے چاہیے کہ وہ جان بھی لیں آپ اس کی پرسنالٹی اور آپ اپنا نقصان بھی نہ کریں. دیکھو جب آدمی کی منگنی ہوتی ہے نا یا بات طے ہوتی ہے تو وہ ٹائم شادی کا نہیں ہوتا, وہ اس کو جانچنے کا ہی تو ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں وہ ایک رسم و رواج کے طور پہ شوہر مانا جاتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جو شخص آپ کو فزیکل ہونے کے لیے مطلب آمادہ کرے شادی سے پہلے, یہ بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے. اس کو غصے میں چیک کریں, میں تو کہتی ہوں غصہ دلائیں, دیکھیں غصے میں کیا کرے گا. کچھ ایسے پرووکیٹو کوسچنز ہوتے ہیں, چاہے آپ سیاست پہ بات کر لیں, فیشن پہ بات کر لیں, اسلام پہ بات کر لیں, کچھ پرووکیٹو کوسچن جو آپ کے ایک جیسے نہیں ہوتے. کانفلکٹ بنائیں, دیکھیں. دیٹ از اے گڈ ٹائم ٹو سی کہ اپوزٹ تھاٹ کیسے بات اچھا, ایک بندہ یا لڑکی جو بھی غائب ہو جائے, ایون ڈپریشن کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو شادی کی زندگی ہے بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے اور ٹھیک نہیں ہوتے. بھائی شادی از ناٹ دا سولوشن, کوئی ٹھیک نہیں ہوتا. اور پلیز, اور یہ دھوکہ ہے اگر آپ یہ چیز اصلیت چھپاتے ہیں کسی سے. ہر برس کی ایک ہی دوا نہیں ہے, شادی نہیں ہے, ہر برس کی دوا الگ الگ ہے. مت کریں کسی کی زندگی, بچے یا بچے کی زندگی خراب.